Today's video, I give you a brief introduction of hire purchase where I cover meaning and definition of hire purchase, important definitions or terms of hire purchase agreement, characteristics of hire purchase agreement, merits and demerits of hire purchase, different methods to compute interest and cash price. Good morning everyone. Today I, Shobha Gera, present before you a topic of this book, Financial Accounting, published by Thakur Publication Private Limited. It is a bilingual book, comes in both languages, Hindi and English. And yes, it is prepared for common syllabus as per NEP, New Education Policy. It is one book for all state universities of Uttar Pradesh. This is all about the book. Now we focus on the syllabus part. In my videos, I particularly focus on Unit 2, where I cover hire purchase account and installment payment system. Look at the expression hire purchase. It consists of two terms. Hire means kiraya. Purchase means खरीदना. किराए पर खरीदना. किराए पर क्या खरीदना? किराए पर assets खरीदना. Basically, hire purchase is a way to finance capital assets and consumer assets. Capital assets are those assets which are used for further production like plant, machinery, equipment, etc. On the other hand, consumer assets are those assets which are used for final consumption like trolley, truck, car, etc. Now we focus on the definition of hire purchase. Hire purchase is a contract. It is a contract between two parties, buyer एंड सेलर. यहाँ पर बायर के पास ऑप्शन होता है एसेट को परचेज करने का. वो एसेट को खरीद भी सकता है और नहीं भी खरीद सकता. यहाँ पर जो सेलर होता है वो एसेट को लेट आउट कर देता है, किराए पर दे देता है और इन रिटर्न किराया लेता है. ये किराया इंस्टॉलमेंट्स के फॉर्म में लिया जाता है जो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक पे करना होता है. जैसे ही ये सारे इंस्टॉलमेंट पे हो जाते हैं, एसेट की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है. किसे मिल जाती है? बायर को मिल जाती है. बट इन केस अगर बायर इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया तो एसेट की ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती. ये इंस्टॉलमेंट एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक पे करने होते हैं और उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक एसेट के जो बायर होता है, बायर के पास एसेट को पोजेस करने का राइट होता है और उसको यूज़ करने का राइट होता है. उस टाइम पीरियड में उसके पास एसेट की ओनरशिप नहीं होती है. ओनरशिप कब मिलती है? जब सारी इंस्टॉलमेंट पे हो जाती हैं. This is all about the definition. Now we move on to important terms or important definitions of hire purchase. Here the term hire. Hire means kiraya. It is a sum payable by hire purchaser. Kiraya payable by hire purchaser. Now we focus on hire vendor. Vendor means seller. He is the seller of the asset. Next is hire purchaser. Purchaser means buyer. He is the buyer of the asset. Hirer. Hirer is a person who possesses the asset and who has the right to use that particular asset. Next term is net hire purchase charge. Net hire purchase charge is a difference amount. It is a difference amount between hire purchase price and net cash price. Next is cash price installment. It is just a way to write cash price in relation to hire purchase installment. तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? हायर परचेज इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय हायर परचेज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नेट कैश प्राइस. नाउ वी टॉक अबाउट डाउन पेमेंट्स. डाउन पेमेंट्स बेसिकली कैश पेमेंट है. ये एक्सपेंसिव आइटम्स के लिए पे किया जाता है, एक्सपेंसिव एसेट्स के लिए पे किया जाता है और ये स्मॉल परसेंटेज होता है फुल कैश प्राइस का और यू कैन से सम परसेंटेज ऑफ फुल कैश प्राइस ऑफ द एसेट. जो हायर परचेज में हम परचेज करते हैं एसेट को, वो एक क्रेडिट सेल है. इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रेडिट सेल. हायर परचेज में जो भी एसेट परचेज होते हैं वो एक तरीके का क्रेडिट सेल होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेमेंट्स हमारी सारी इंस्टॉलमेंट्स में पे की जाती हैं, प्रॉम्प्ट पेमेंट नहीं होता. नाउ वी टॉक अबाउट हायर परचेज एग्रीमेंट. एग्रीमेंट मीन्स ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पर ऑफर क्या होता है? ऑफर एसेट को ऑफर किया जाता है इस एग्रीमेंट के थ्रू, हायर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू एसेट को ऑफर किया जाता है. नेक्स्ट एक्सेप्टेंस क्या होता है? इस एसेट को ट्रांसफर करने के टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हैं.
यहाँ पे कंसिडरेशन क्या होता है, इस एग्रीमेंट के थ्रू कंसिडरेशन क्या होता है, एसेट को ट्रांसफर करने के लिए जो पेमेंट्स मांगे जाते हैं उनको हम कंसिडरेशन कहते हैं। यहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक बायर और एक सेलर। बायर होता है हायर परचेजर और सेलर होता है हायर वेंडर। वैसे इस एग्रीमेंट को रजिस्टर करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट येस इस एग्रीमेंट के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं बायर और सेलर के बीच में, उन सारे ट्रांजेक्शन को रेगुलेट करने के लिए हायर परचेज एक्ट बनाया गया है, हायर परचेज एक्ट 1972। एग्रीमेंट होते ही, हायर परचेज एग्रीमेंट होते ही एसेट की पोजीशन मिल जाती है बायर को, और उसे एसेट की पोजीशन मिलती है तो उसे एसेट को यूज़ करने का राइट मिलता है, और यूज़ करने का राइट मिलेगा तो उसे इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है, और ये इंस्टॉलमेंट एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक पे होती हैं। जैसे ही लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाती है वैसे ही एसेट की ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है बायर को। ये जो एग्रीमेंट है हायर परचेज एग्रीमेंट, इसको टर्मिनेट करने का राइट दोनों पार्टीज़ के पास है। दोनों पार्टीज़ इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकती हैं, बट ये टर्मिनेशन एग्रीमेंट लास्ट पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट पेमेंट या फिर इंस्टॉलमेंट की लास्ट पेमेंट करने के बाद नहीं होता है। टर्मिनेट कब होता है कॉन्ट्रैक्ट? टर्मिनेट तब होता है जब तक लास्ट पेमेंट नहीं हुई है, मतलब जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है उस टाइम से पहले, इस टाइम के ख़त्म होने से पहले ही टर्मिनेट कर सकते हैं इस एग्रीमेंट को। नाउ वी टॉक अबाउट द कंडीशन और यू कैन से स्पेसिफिक टर्म्स रिलेटेड टू हायर परचेज एग्रीमेंट्स। यहाँ पे जितनी भी पेमेंट्स होती हैं एसेट के लिए इस एग्रीमेंट के थ्रू, वो सारी इंस्टॉलमेंट कहलाई जाती हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे जैसे ही एसेट एग्रीमेंट होता है बायर को एसेट का पोजेशन मिल जाता है। सिर्फ पोजेशन मिलता है, एसेट को रखने का राइट मिलता है और उसको यूज़ करने का राइट मिलता है। ओनरशिप कब मिलती है? ओनरशिप जैसे ही लास्ट पेमेंट हो जाती है, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाता है, वैसे ही एसेट की ओनरशिप मिल जाती है बायर को। अगर इन केस अगर कोई भी पेमेंट डिफ़ॉल्ट हो जाता है, पेमेंट डिफ़ॉल्ट हो गया तो ओनरशिप नहीं मिलेगी, एसेट सोल्ड नहीं होता इस केस में। जैसे ही यहाँ पे जितने भी इंस्टॉलमेंट्स होते हैं उनको हम हायर चार्ज कहते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट। यहाँ पर इस एग्रीमेंट के थ्रू बायर अपने इंटेंशंस क्लियर करता है कि उसे एसेट क्यों खरीदना है, और सेलर अपने टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन करता है उसे एसेट को कैसे ट्रांसफ़र करना है। जैसे ही टर्म्स एंड कंडीशन दोनों के बीच में, दोनों पार्टीज़ के बीच में एग्रीड हो जाते हैं, वैसे ही उस एग्रीमेंट को रिटन फॉर्म में बनाया जाता है। जैसे ही एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होता है, दोनों पार्टीज उस एग्रीमेंट को साइन कर देती हैं। नेक्स्ट, इस एग्रीमेंट के थ्रू दोनों पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। दोनों पार्टीज एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए बाइंड हो जाती हैं। इस एग्रीमेंट को करने के लिए दोनों पार्टीज का कैपेबल होना ज़रूरी है। दोनों पार्टीज को साउंड माइंड का होना चाहिए। दोनों पार्टीज में से कोई भी माइनर नहीं होना चाहिए। इसमें सारे कंसिडरेशन, एसेट को ट्रांसफ़र करने के लिए जो पेमेंट्स होते हैं वो सारे पेड होने चाहिए, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा, एग्रीमेंट पूरा नहीं होगा। नेक्स्ट इज राइट टू टर्मिनेशन। दोनों पार्टीज़ के पास राइट है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का। नाउ वी टॉक अबाउट मेरिट्स ऑफ हायर परचेज। हायर रियलाइजेबल इनकम। यहाँ पर सेलर की इनकम ज़्यादा होती है, सेलर ज़्यादा अर्न करता है क्योंकि वो इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करता है। यहाँ पर एनपीए होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए होने के चांसेस कम है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, पेमेंट का डिफ़ॉल्ट बहुत कम होता है। नेक्स्ट, रिसाइकल रिकवर्ड फंड। यहाँ पे फंड को रिकवर करने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ईजी होता है, क्योंकि इसकी ड्यूटी, फंड्स को रिकवर करने की ड्यूटी किसके पास होती है? बैंक्स के पास होती है। नाउ वी टॉक अबाउट डीमेरिट्स ऑफ हायर परचेज। डीमेरिट्स ऑफ हायर परचेज इनकरेज लेविश एक्सपेंडिचर। यहाँ पर बायर मोटिवेट हो जाता है क्योंकि उसे स्मॉल पेमेंट्स करनी होती हैं, तो वो मोटिवेट हो जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर लेता है या फिर ज़्यादा महंगे एसेट्स खरीद लेता है, भले ही उसकी इनकम हो या ना हो। फ्यूचर इनकम मॉर्गेज। यहाँ पे बायर की फ्यूचर इनकम मॉर्गेज हो जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पे एसेट परचेज़ कर लिया, परचेज़ करने के बाद जो उससे रिटर्न मिलते हैं परचेज़र को, वो उतने ज़्यादा नहीं होते कि वो उससे प्रॉफिट जनरेट कर सके। उसका वो जो रिटर्न आता है वो सारे रेंट पे करने में ही चला जाता है, तो इसलिए उसकी जो इनकम होती है
बायर की इनकम होती है वो मॉर्गेज हो जाती है। नाउ वी टॉक अबाउट हायर इंस्टॉलमेंट प्राइस। यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट प्राइस होता है वो जनरली हायर होता है क्योंकि सेलर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। डिफ़िकल्टी इन रीसेल ऑफ गुड्स, यहाँ पे एसेट्स को दोबारा सोल्ड आउट करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एसेट की वैल्यू डेप्रिसिएट हो जाती है, क्योंकि बायर एसेट को यूज़ कर रहा है ना एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक। यूज़ करने से उसका नॉर्मल वेयर एंड टियर होता है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो जाती है। एंड अब टूवर्ड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के पैसेज के साथ एसेट आउटडेट भी हो जाता है। दीज ऑल आर द डीमेरिट्स ऑफ हायर परचेज। नाउ वी टॉक अबाउट डिफरेंट मेथड्स टू कंप्यूट इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस। हायर परचेज में 3 इम्पॉर्टेंट इनपुट्स होते हैं। सो ये इनपुट्स कौन से हैं? कैश प्राइस है, इंटरेस्ट है एंड इंस्टॉलमेंट्स हैं। ठीक है, इन 3 इनपुट्स के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। इस रिलेशनशिप को हम एक फार्मूला से समझते हैं। सो वो फार्मूला क्या है? फार्मूला नंबर 1 क्या था? इंस्टॉलमेंट्स इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस कैश प्राइस। इस फार्मूला नंबर 1 से हम 2 फार्मूला और डिराइव कर सकते हैं। जैसे सेकेंड फार्मूला क्या हो सकता है? मान लीजिए कि हमें इंटरेस्ट नहीं पता है, ये हमें ढूंढना है, और हमें क्या पता है? इंस्टॉलमेंट पता है, कैश प्राइस पता है। तो इंटरेस्ट को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? इंटरेस्ट इक्वल टू इंस्टॉलमेंट माइनस कैश प्राइस। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला होता है। अब हम अज्यूम करते हैं कि हमें कैश प्राइस नहीं पता, अब हमें ये ढूंढना है। तो इसको ढूंढने के लिए क्या करेंगे हम? इंस्टॉलमेंट से हम इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। कैश प्राइस इक्वल टू इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। ठीक है, सो ये फर्स्ट फॉर्मूला नंबर 1 है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नाउ वी टॉक अबाउट फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 क्या है? फॉर्मूला नंबर 2, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हायर परचेज। हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस क्या होता है? डाउन पेमेंट्स प्लस कैश ऑल इंस्टॉलमेंट्स। डाउन पेमेंट्स प्लस ऑल इंस्टॉल, दिस इज द फॉर्मूला नंबर 2, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 क्या है? हायर परचेज प्राइस इक्वल टू टोटल कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 3, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। कैश प्राइस ये हम पढ़ चुके हैं, इंटरेस्ट हमने पढ़ लिया है इंपॉर्टेंट टर्म और डेफिनेशंस में। तो कैश प्राइस के लिए अकाउंट बनता है वो हमारा रियल अकाउंट होता है, और जो हमारा इंटरेस्ट के लिए अकाउंट बनता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन डेबिटेड एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड, एंड नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो फिर सारे एक्सपेंसेस डेबिट किए जाते हैं और सारे इनकम क्रेडिट किए जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट अकाउंट। नाउ वी फोकस ऑन केस 1, जहाँ पे हम समझेंगे कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैश प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 जहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट्स, जब हमें कैश प्राइस दिया होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है? इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है और हमें इंस्टॉलमेंट्स फाइंड आउट करना है। वी अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, आकाश ने क्या परचेज किया? आकाश ने कंप्यूटर परचेज किया है, कंप्यूटर हायर परचेज में परचेज किया है ऑन 1 अप्रैल। इस कंप्यूटर को परचेज करने के लिए कैश प्राइस क्या था? 76,000। कंप्यूटर को कितने में परचेज किया है? 76,000 में परचेज किया है। ये कैश प्राइस है एसेट की। यहाँ पर आकाश ने 36,000 की कैश डाउन पेमेंट कर दी है। नेक्स्ट बाकी का जो पेमेंट है, रिमेनिंग पेमेंट, वो पेमेंट 10,000 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे किया गया है विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ। मतलब कि ये कैश प्राइस है, इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड जो कैश प्राइस होता है वो अमाउंट दे रखा है हमें, और हमें ढूंढना क्या है? हमें ढूंढना है इंटरेस्ट ढूंढना है इसमें, और इंस्टॉलमेंट्स ढूंढना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है 10%। ठीक है, सो ये सब करना है, हमें इंटरेस्ट ढूंढना है। उसके लिए हम टेबल फॉर्म करेंगे। नाउ सोल्यूशन देखते हैं हम। तो हमने कंप्यूटर परचेज किया है 76,000 में,
ऑन फर्स्ट अप्रैल 2014 कैश प्राइस कितना है 76,000। इसके लिए डाउन पेमेंट हो गई, उसी दिन पेमेंट कर दिया, डाउन पेमेंट कैश पेमेंट किया है हमने 36,000 का, 36,000 का डाउन पेमेंट कर दिया। ये हमारा कैश प्राइस, ये डाउन पेमेंट है, ये भी डाउन पेमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट ईयर के एंडिंग में 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमको बाकी का रिमेनिंग अमाउंट पे करना है। इधर फर्स्ट 2014 के एंड में कितना अमाउंट रह जाएगा हमारे पास जो पे कर रहा है, टोटल कैश प्राइस, रिमेनिंग कैश प्राइस कितना रह जाएगा 76 में से हमने 36,000 माइनस कर दिया, 40,000 रिमेनिंग कैश अमाउंट है। 2015 के एंड में हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने का कैश प्राइस कितना था 10,000। इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम। इंटरेस्ट चार्ज किस पे चार्ज होता है, इंटरेस्ट 10% कैश प्राइस पे, रिमेनिंग कैश प्राइस पे चार्ज होता है। रिमेनिंग कैश प्राइस क्या है, रिमेनिंग कैश प्राइस क्या है 40,000, तो हम 10% चार्ज करेंगे 40,000 पे, कितना आएगा 4,000। हमारा कैश प्राइस को हम अगर इंटरेस्ट के साथ प्लस कर देते हैं तो हमारा इंस्टॉलमेंट आ जाता है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू इंस्टॉलमेंट। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 था। कैश प्राइस को हमने इस 2015 के एंडिंग पीरियड पे कैश प्राइस को प्लस कर दिया इंटरेस्ट के साथ, कितना आ गया इंस्टॉलमेंट 14,000। तो उस 2015 की हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी पे होगी 14,000 पे होगी। अब नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे, नेक्स्ट ईयर का सेकेंड इंस्टॉलमेंट। इससे पहले हम निकालेंगे रिमेनिंग कैश प्राइस। रिमेनिंग कैश प्राइस कितना होगा, इस साल हमने पे कर दिया था कैश प्राइस, पेड कितना है 10,000, तो 40,000 में से 10,000 माइनस कर दो 30,000 आ जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर की सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगी। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में हम अगेन इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, किस पर चार्ज करेंगे, कैश प्राइस पे चार्ज करेंगे, रिमेनिंग कैश प्राइस पे चार्ज होगा। रिमेनिंग कैश प्राइस कितना था 30,000, 10% 30,000 का 10% कितना होगा 3,000। इन दोनों को प्लस कर दो, कैश प्राइस और इंटरेस्ट को प्लस कर दोगे तो इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। इंस्टॉलमेंट कितनी है 13,000 की इंस्टॉलमेंट है। इस पीरियड के एंडिंग में क्या निकाला जाएगा, अगेन कैश प्राइस निकाला जाएगा, रिमेनिंग कैश प्राइस। इस पीरियड में कितना पे किया था कैश प्राइस 10,000 पे किया था, 10,000 माइनस कर दो 20,000 आ जाएगा। 20,000 पे करेंगे, 20,000 अभी रिमेनिंग है, रिमेनिंग कैश प्राइस। नेक्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे, फिर से इंटरेस्ट लगाएंगे इस अमाउंट पे, रिमेनिंग कैश प्राइस पे फिर से इंटरेस्ट लगेगा और कितना आएगा 2,000, 10% ऑफ 20,000 2%, तो 10,000 में 2,000 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। इंस्टॉलमेंट क्या है हमारी थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट 12,000, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू 12,000 इंस्टॉलमेंट। रिमेनिंग कैश प्राइस कितना होगा, अगेन इस पीरियड के एंड में रिमेनिंग कैश प्राइस होगा 20,000 माइनस 10,000 रिमेनिंग बच जाएगा। रिमेनिंग कैश प्राइस, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि ये रिमेनिंग कैश प्राइस लास्ट इंस्टॉलमेंट कैश प्राइस के बराबर होगी, जिसकी वजह से हमारा टोटल कैश प्राइस नील हो जाता है, 0। लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर में 4th इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। 4th इंस्टॉलमेंट में क्या करेंगे, पहले इंटरेस्ट चार्ज करेंगे रिमेनिंग अमाउंट पे, रिमेनिंग कैश प्राइस पे। रिमेनिंग कैश प्राइस कितना था 10,000 पे 10% निकाला 1,000। अब इंस्टॉलमेंट निकालना है, कैश प्राइस को इंटरेस्ट में ऐड करो, इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, कितना होगा 10 + 1 = 11,000। लास्ट इंस्टॉलमेंट आ गई 11,000। इसके बाद कुछ रिमेनिंग बचा, कैश प्राइस 0 है क्योंकि ये दोनों सेम थे। ये जो टोटल है ये कितना है 76,000, तो टोटल कैश प्राइस कितना हो गया 76,000। एसेट की परचेज प्राइस कितना था 76,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना है, सबको ऐड कर दो, 4,000 + 3,000 + 2,000 + 1,000, 10,000 का इंटरेस्ट आ गया। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, सारे इंस्टॉलमेंट्स को प्लस कर दो। ये कैश डाउन पेमेंट थी, ये इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये कैश डाउन पेमेंट थी। बाकी के सारे इंस्टॉलमेंट्स हैं, 4 इंस्टॉलमेंट्स, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, इन सबको प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 86,000। 86,000 क्या है हायर परचेज प्राइस।
हायर परचेज प्राइस क्या होता है? हायर परचेज प्राइस कैश डाउन पेमेंट। नाउ वी टॉक अबाउट केस नंबर 2। यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया होगा, टोटल कैश प्राइस भी दिया होगा और सारे इंस्टॉलमेंट्स भी दिए होंगे। नाउ वी लुक एट दिस केस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2। तो एक्स लिमिटेड ने क्या परचेज किया है? मशीन परचेज की है। इसने मशीन परचेज की है। कैश प्राइस है मशीन का 80,000। डाउन पेमेंट किया है 21,622। बाकी का पेमेंट किससे करना है? 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में करना है। हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? 15,400 की एक इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, ये 12 महीने के बाद करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। सो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू सोल्यूशन। यहाँ पर एसेट की, मशीन को खरीदने की कैश प्राइस कितना था? 80,000। डाउन पेमेंट कितना था? 21,622 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। इंस्टॉलमेंट है 15,400। फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें? यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट के लिए वैसे तो दूसरा फॉर्मूला होता है। अभी वैसे इस न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले हमें इस फॉर्मूले पे फोकस करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला क्या है? कैश प्राइस इक्वल टू इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। सो लेट्स सी। फर्स्ट एसेट को परचेज किया कितने पर? 80,000 पे। उसी दिन डाउन पेमेंट कर दी, कैश पेमेंट कर दिया। कैश पेमेंट कितने का हुआ? 21,622 का। इसको माइनस कर दो तो कितना क्या आ जाएगा? रिमेनिंग कैश प्राइस आ जाएगी। रिमेनिंग कैश प्राइस कितने की आई? 58,378। ठीक है, इस दिन फर्स्ट ईयर की बात है और फर्स्ट ईयर में सिर्फ कैश डाउन पेमेंट हुआ था 21,600 का। ये अमाउंट क्या है? डाउन पेमेंट अमाउंट है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का था? 15,400 का। इस पे इंटरेस्ट चार्ज करना था। इंटरेस्ट किस पे चार्ज होता है? कैश प्राइस पे चार्ज होता है, बट इस क्वेश्चन में हमें कैश प्राइस पता ही नहीं है, तो हमें पर्टिकुलर पीरियड का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना कैश प्राइस होगा वो पता ही नहीं है। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? दिस वन। कैश प्राइस इक्वल टू इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट में से माइनस करेंगे हम इंटरेस्ट, कैश प्राइस आ जाएगा। पर लेकिन उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा? इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट किस पे चार्ज होता है? रिमेनिंग कैश प्राइस पे। रिमेनिंग कैश प्राइस कितना था? 58,378। 50,378 पे 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज करो। 10% था ना, इंटरेस्ट रेट चार्ज किया, कितना आएगा? 5838 माइनस किया, कैश प्राइस आ गया 9562। कैश प्राइस कितना पेड करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में? 9562। इसमें इंटरेस्ट कितना है? 5838 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इन दोनों को प्लस करके क्या आता है? इंस्टॉलमेंट आता है। इंस्टॉलमेंट कितनी थी हमारी? ये क्वेश्चन में पहले से ही गिवन थी 15,400। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में फिर से क्या निकालेंगे? कैश प्राइस निकालेंगे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का। तो कैश प्राइस कैसे निकलता है? पहले पता होना चाहिए इंटरेस्ट कितना है। रिमेनिंग कैश प्राइस निकाला था? नहीं निकाला था। इस वाले कैश प्राइस को हम माइनस कर देंगे। लास्ट ईयर कितना था? 58 था। ये कैश प्राइस हमने पेड कर दिया, तो इसको माइनस कर दो 48। रिमेनिंग कैश प्राइस आ जाएगा 48,816 रिमेनिंग कैश प्राइस। ये नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के कैश प्राइस के लिए। तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमारा इंटरेस्ट किस पर निकलेगा? इंटरेस्ट निकलेगा रिमेनिंग कैश प्राइस पे, प्रीवियस ईयर के रिमेनिंग कैश प्राइस पे। प्रीवियस ईयर में कितना रिमेनिंग कैश प्राइस था? 48,816। इस पे इंटरेस्ट निकालो, कितना इंटरेस्ट रेट है? 10%। इस पे इंटरेस्ट निकाला 10%, 44,882। ठीक है, तो रिमेनिंग कैश। सो नेक्स्ट कैश प्राइस कितना आया इस पर्टिकुलर ईयर का? सेकेंड इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस कितना होगा? 10,518। 10,518 कैश प्राइस हो गया। इंस्टॉलमेंट कैसे निकलेगी? इन दोनों को ऐड करके 15,400। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि एनुअली हमने कितना इंटरेस्ट पे किया है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट देखते हैं फिर किस पे। उससे पहले हमें क्या निकालना है? रिमेनिंग कैश प्राइस निकालना है। रिमेनिंग कैश प्राइस क्या करेंगे? जितना कैश प्राइस हमने पेड कर दिया उसको माइनस कर दो। पहले कितना था? 48,816। इसमें से हमने कैश प्राइस जो पेड कर दिया उसको माइनस किया, 10,518 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 38,298।
रिमेनिंग कैश प्राइस, थर्ड इंस्टॉलमेंट पे जो इंटरेस्ट निकलेगा वो रिमेनिंग कैश प्राइस पे निकलेगा। 10% निकाला, 3830 इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, इंटरेस्ट यहाँ पे लिख दिया हमने। कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस कर दो, कैश प्राइस आ जाएगा। इस कैश प्राइस को कहाँ डालेंगे, इधर डालेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा, इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट, ये टेली हो रहा है, क्वेश्चन में ही ऑलरेडी गिवन था, टेली हो रहा है, टेली हो रहा है तो इसका मतलब सही कर रहे हो, अभी तक आंसर सही चल रहा है। नेक्स्ट फोर्थ इंस्टॉलमेंट। फोर्थ इंस्टॉलमेंट में अगेन उससे पहले, इंस्टॉलमेंट निकालने से पहले हम रिमेनिंग कैश प्राइस निकालेंगे। रिमेनिंग कैश प्राइस, कितना कैश प्राइस पेड किया था थर्ड ईयर में? थर्ड ईयर में हमने 11570 किया था। 11750 को हम प्रीवियस ईयर का रिमेनिंग कैश प्राइस जो था उससे माइनस करेंगे, कितना आएगा, 26,728। ये रिमेनिंग कैश प्राइस है थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर का रिमेनिंग कैश प्राइस 26,728। फोर्थ ईयर की इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए पहले इंटरेस्ट निकाला जाएगा आरसीपी पर, रिमेनिंग कैश प्राइस पर। 10% रिमेनिंग कैश प्राइस पे निकाला, 2672। ये इंटरेस्ट है हमारा। इंस्टॉलमेंट्स में, इंस्टॉलमेंट से हमने कैश इंटरेस्ट माइनस कर दिया, कैश प्राइस आ गया। कैश प्राइस 12,728 आ जाएगा। कैश प्राइस को इंटरेस्ट से प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा, इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। अगेन टैली हो गया, 15 सही है। नेक्स्ट, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट निकालने से पहले क्या निकालेंगे, आरसीपी निकालेंगे पहले। आरसीपी क्या है, रिमेनिंग कैश प्राइस। रिमेनिंग कैश प्राइस क्या होगा, पहले कितनी थी कैश प्राइस, 26,728, कितनी पेड कर दी है, 12,728, माइनस कर दो, कितना आ गया रिमेनिंग कैश प्राइस, 14,000 रिमेनिंग कैश प्राइस है। ये क्यों चाहिए, इंटरेस्ट निकालने के लिए चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा 14,000 पे 10% होगा। आरसीपी रिमेनिंग कैश प्राइस 14,000 पे 10% कितना होगा, 1400। 1400 को माइनस कर दो इंस्टॉलमेंट से, कितना आ जाएगा, कैश प्राइस कितनी पेड की है, 14,000। लास्ट कैश प्राइस तुम्हारी 14,000 है, 14,000 ये हो गया। इंटरेस्ट निकाल दिया था 1400, दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 15,400। अगेन टैली हो गया, सही है आंसर। देखो कैश प्राइस अगेन नील हो गया, पूरा कैश प्राइस 80,000 का कैश प्राइस हमने पे कर दिया, नील। नेक्स्ट, टोटल कैश प्राइस कितना हो गया पेड, 80,000, पूरा कैश प्राइस पे कर दिया, 80,000 पूरा पे कर दिया। टोटल इंटरेस्ट, सारे इंटरेस्ट को प्लस कर दो, जितनी भी इंस्टॉलमेंट पे की है उसमें जो भी इंटरेस्ट अमाउंट इंक्लूड था उसको सब प्लस कर दो। फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ, फिफ्थ, प्लस करके कितना आएगा, 18,622। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट्स ये फर्स्ट चीज़ क्या है, डाउन पेमेंट है। डाउन पेमेंट, यस, ये सारी क्या है, इंस्टॉलमेंट्स। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, तो सारी डाउन पेमेंट्स, जो भी डाउन पेमेंट होगी उसको अगर सारी इंस्टॉलमेंट से प्लस करते हैं तो क्या आता है आंसर, हायर परचेज प्राइस। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, 98,622 हायर परचेज प्राइस। ठीक है, तो हमने इसमें जो क्या डिटरमाइन करना था, हमने इसमें डिटरमाइन करना था सिंगल पीरियड में एनुअली हम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो डिटरमाइन करना था। क्वेश्चन में हमें क्या डिटरमाइन करना था, हमें इंटरेस्ट डिटरमाइन करना था, हम हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो डिटरमाइन करना था। उसके लिए हमने क्या निकाला, उसके लिए हमने हर इंस्टॉलमेंट में हम कितना कैश प्राइस पे कर रहे हैं वो निकाला। इसके लिए फॉर्मूला क्या था, इंस्टॉलमेंट में से हम इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं, कैश प्राइस आ जाता है। तो ये था इस क्वेश्चन के। अब एक दूसरा तरीका है इसको निकालने का, हम टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। अगर मान लो हमें सिंगल पीरियड का नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें टोटल इंटरेस्ट निकालना है। ये टोटल इंटरेस्ट चाहिए, क्वेश्चन में सिर्फ टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला है। तो टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है फॉर्मूला, हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। क्या करेंगे इसमें, ये आई थिंक मैंने पहले भी समझाया है। हायर परचेज प्राइस क्या होता है, हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट, टोटल कैश प्राइस
टोटल इंटरेस्ट, ठीक है, हमको ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल इंटरेस्ट में से टोटल इंटरेस्ट निकालना है, टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, हायर परचेज में से कैश प्राइस को माइनस कर देंगे। वही चीज़ यहाँ पे की है। हायर परचेज प्राइस क्या होते हैं, डाउन पेमेंट्स प्लस इंस्टॉलमेंट्स। डाउन पेमेंट कितनी दी पहली, 21,622 फर्स्ट डाउन पेमेंट, बाकी की इंस्टॉलमेंट कितनी थी, हर एक इक्वल इंस्टॉलमेंट थी। एनुअली हमने इक्वल इंस्टॉलमेंट पे किया 15,400, तो मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट थी, तो कितना आ गया, इन दोनों को प्लस करो, इसको मल्टीप्लाई करो, पहले मल्टीप्लाई किया कितना आया 77,000, दोनों को प्लस करो कितना आएगा 98,622, इसको माइनस कर दो, हायर परचेज प्राइस कितना आया 98,622 टेबल में भी है, इसको माइनस कर दिया कैश प्राइस से, कैश प्राइस कितना था 80,000, टोटल कैश प्राइस, टोटल इंटरेस्ट, टोटल हायर परचेज प्राइस, इसको इससे माइनस करोगे, हायर परचेज प्राइस को कैश प्राइस से माइनस करोगे, कितना आएगा टोटल इंटरेस्ट 18,622। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड थैंक यू सो मच।